Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to our online class session of the course Applications of Information and Communication Technologies ICT 2326 offered in BS Biotechnology third semester and ICT 1126 offered in BS Botany first semester in the Department of Biotechnology. Today is 19th of January 2026 and we will be going through hopefully in the last concluding topics of our course and again very essential one uh, and important one where we need to understand how our system works and what exactly are the power source of our system and some other attributes. What's the best way to turn my computer on and off? The power supply, which is housed inside the system unit, transforms the uh, wall voltage to the voltages required by the computer chips. ठीक है, एक तरफ हमारे पास दीवार में 220 वोल्ट आ रहे हैं और एक तरफ हमारे सिस्टम में मौजूद डिजिटल आईसीज हैं, सर्किट्स हैं, चिप्स हैं जिनको एक मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वोल्टेज है ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद पावर सप्लाई में हो रही होती है। Powering on your computer from a completely turned off state, such as when you start your computer in the morning, is called a cold boot. In Windows 8.1, you can turn your computer off by pressing the computer's power button or by using the shutdown option from the power icon found it in the upper right hand corner in the start screen। क्या कहते हैं कि जब हमने अपने सिस्टम को बिल्कुल न्यू सिरे से स्टार्ट करना है, लाइक आफ्टर इट वाज टर्न्ड ऑफ और इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर वी कॉल इट शट डाउन, देन इस स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर को कहते हैं कोल्ड बूट। ठीक है, should I turn off my computer every time I'm done using it? Some people say you should leave your computer on at all times. They argue that turning your computer on and off throughout the day subjects its component to stress because the heating and cooling process forces the components to expand and contract repeatedly. Other people say you should shut down your computer when you are not using it. They claim that it's not as environmentally friendly and that you will end up wasting money on electricity from the computer running all the time। ठीक है, एक वक्त एक एस्पेक्ट ये है कि जो अभी हम फिलहाल डेस्कटॉप सिस्टम्स की बात कर रहे हैं और इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि ऑल द टाइम वो सिस्टम ऑन रहे और एक है कि जब वो यूज़ में ना हो तो ऑफ हो जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी से वो, जब हम सिस्टम ऑफ करके ऑन करते हैं कोल्ड बूट में डेफिनेटली टेम्परेचर उस सिस्टम का एक काफ़ी लो होता है और उसके अंदर मौजूद प्रोसेसेस हीटअप होके देन सिस्टम स्टार्ट होता है। ज़्यादा हीटअप हो जाए तो उसकी कूलिंग डाउन होती है। तो ये चीज़ें सिस्टम में मौजूद कंपोनेंट्स की एक उसके प्रोसेसिंग को काफ़ी अफेक्ट कर रही होती हैं। Modern operating systems include the power management settings that allow the most power hungry components of the system, which is the hard drive and the monitor, to shut down after a short idle period. With the power management,
options of Windows 8. For example, you only need to shut down your computer completely when you need to repair or install hardware in the system unit or move it to other location. However, if you use your computer only for a little while each day, it would be best to power it off completely after each daily use. सो इट ऑल डिपेंड्स कि हम अपने कंप्यूटर को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर एक डेफिनेट टाइम पीरियड में लेट से 1 से 2 घंटे हमने 24 घंटों में से यूज़ करना है, तो फिर तो कन्वीनियंट यही है कि हम उसको यूज़ करने के बाद ऑफ कर दें। बट अगर हमें ये है कि हमने उसको कभी कभी यूज़ करना है, लेकिन थ्रू आउट द डे एंड नाइट हमने उसको यूज़ करना है, तो उस टाइम फिर कन्वीनियंट ये होता है कि पावर मैनेजमेंट ऑप्शंस में हम ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें कि जहाँ पे वो जो हार्ड ड्राइव एंड जो मॉनिटर है वो टर्न ऑफ हो जाए। एंड देन आफ्टर आइडल पीरियड यानी कि जब उसको यूज़ ना किया जा रहा हो, एंड वो टाइमर सेट किया जा सकता है 5 मिनट 10 मिनट, एंड देन उसके बाद वापस से उसको स्टार्ट कर सके। Can rest my computer without turning it off completely? In Windows 8.1, the main method of power management is to sleep. When a computer enters the sleep mode, all of the documents, applications, and data you're using remain in the RAM, which is a random access memory, where they are quickly accessible when you restart your computer. रिस्टार्ट से मुराद कि जब स्लीप से हम उसको वापस से रिज्यूम करते हैं। सो एक न्यू ऑप्शन आया है स्लीप मोड, जिसमें हम अपने सिस्टम को एक लेसर एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेट में ले जाते हैं, और वहाँ पे हमारे पास तमाम जो ओपन विंडोज़ होती हैं वो एक रैम में स्टोर हो जाती हैं। जब स्लीप से वापस आएंगे तो वहीं से हम उसको रिज्यूम करेंगे। In sleep mode, the computer enters a state of greatly reduced power consumption, which saves energy. To put your computer into sleep mode in Windows 8.1, click or touch the power button on the start screen, then select the sleep option. To make to wake up your computer, press a key or the physical power button. In a few seconds, the computer will resume with exactly the same programs running and documents displayed as when you put it in sleep. ठीक है। सो स्लीप मोड में ऑप्शंस डिफाइंड होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं कि हम एक बटन से अपने सिस्टम को स्लीप पे ले जाते हैं एंड देन वहाँ से रिज्यूम कर लेते हैं। इसमें हमारे पास अगर जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें सिंपली एक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि हम अगर इसका लिड क्लोज कर दें तो वो स्लीप मोड में चला जाता है, एंड जब लिड ओपन करेंगे तो वापस से सिस्टम वेक हो जाएगा। अच्छा, इसमें देर आर 2 and 3 थिंग्स टू मेक श्योर कि अगर आप एक पब्लिक प्लेस में हैं या फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स कैन एक्सेस योर कंप्यूटर, इट्स ऑलवेज बेटर टू लॉक योर कंप्यूटर बिफोर मेकिंग इट स्लीप। ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि Windows+L की जो होती है उसको प्रेस करेंगे तो नाउ इट विल अगेन बी रिक्वायरिंग योर पासवर्ड टू साइन इन टू योर सिस्टम। Secondly, if there are any devices attached to your system which have some sensors, मिसाल के तौर पर वायरलेस माउस है या वायरलेस कीबोर्ड है, तो इन केस अगर उनमें किसी भी तरीके की मूवमेंट आएगी तो सिस्टम विल अगेन बी वेक्ड अप। तो ये चीज़ के in case you are using a laptop with a wireless mouse and you put it on sleep and then you start टेकिंग इट टू सम अदर प्लेस, तो अब मोशन सेंसर्स की वजह से सिस्टम स्लीप में नहीं रहेगा एंड इट विल बी एक्टिव डिस्पाइट कि उसकी स्क्रीन क्लोज है। If you can't ever want to completely turn off your computer, you can change what happens when you press the power
button or to close the lid of the laptop. By accessing the power options system setting window, you can decide if you want your computer to sleep, hibernate or shut down when you press the power button. अब न्यू टर्मिनोलॉजी हमारे पास आई है हाइबरनेट की. हाइबरनेट क्या चीज़ है? Hibernate option is similar to sleep except that your data is stored on your hard drive instead of the RAM and your computer is powered off. This uses much less battery power than sleep and is a good choice if you won't be using your laptop for a longer time and won't have the opportunity to charge it. देखिए, अगर हम सिस्टम को ऑफ करेंगे उसमें ओपन तमाम एप्लीकेशंस, तमाम ब्राउज़र के ओपन टैब्स, तो ये तमाम चीज़ें क्लोज़ हो जाएंगी. इन केस अगर आप ये चीज़ नहीं चाह रहे तो फिर हमें हमारे पास और हम बैटरी को भी लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं और हमने सिस्टम को लेट्स 5 to 6 आवर्स के लिए यूज़ नहीं करना, तो वहाँ पे हम स्लीप नहीं, वहाँ पे हम हाइबरनेट करेंगे. हाइबरनेशन हमें पता है कि एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन होता है, एनिमल्स में पाया जाता है, जहाँ पे एनिमल्स डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट को मिनिमम कर देते हैं, देन दे स्पेंड देयर लाइफ मंथ्स देयर. ठीक है, तो हाइबरनेट कंप्यूटर में भी स्लीप एंड पावर ऑफ के दरमियान के एक स्टेट है जहाँ पे हमारे ओपन डॉक्यूमेंट्स, टैब्स वगैरह सब चीज़ें मौजूद होती हैं इन दी ओपन फॉर्म में, हार्ड ड्राइव में स्टोर होती हैं और सिस्टम अपने लीस्ट यूटिलाइजिंग बैटरी स्टेट पे चला जाता है. However, the sleep is still a good option to choose if you just won't be using your computer for a short time. You may want to set your computer so it sleeps when you close the lid but hibernates when you press the power button, giving you quick access to both options. अच्छा, ये हमारे पास ऊपर पावर मैनेजमेंट की एक आई है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि डिफरेंट ऑप्शन से हमारे पास क्या होगा. पावर सेटिंग बटन में हमारे पास, अगर ये हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो पावर बटन जो मोस्टली लैपटॉप पे एग्जिस्ट कर रहा होता है कीबोर्ड में, और व्हेन आई क्लोज द लिड ऑन बैटरी एंड प्लग्ड इन, इसमें क्या होगा? सो जब हम पावर बटन प्रेस करेंगे और सिस्टम अपनी अपनी बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अपने लैपटॉप में मौजूद जो बैटरी है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, फिर सिस्टम हाइबरनेट में चला जाएगा. और जब वो प्लग्ड इन है विद द चार्जर, तो वो दैट विल गो इन द स्लीप मोड. ठीक है, एंड व्हेन आई क्लोज द लिड, इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? डू नथिंग, स्लीप, हाइबरनेट, शट डाउन. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्लीप ही रखें एंड ये ऑप्शंस हम चेंज भी कर सकते हैं. इसमें स्क्रीन टाइम ऑफ का भी ऑप्शन होता है. 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद वो स्क्रीन टाइम ऑफ हो जाती है. तो जब वेकअप होगा तो रिक्वायर्स अ पासवर्ड ऑलवेज. ठीक है. अच्छा, कुछ सिस्टम्स में हाइबरनेट का ऑप्शन नहीं होता, वो फिर अपने लैपटॉप का या अपने कंप्यूटर का नाम लिख के गूगल पे सर्च करें कि हाइबरनेट ऑप्शन को कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, एंड देन वो ऑप्शन हमारे पास वहाँ पे आ जाता है. What's the restart option in Windows 4? If you're using Windows 8, you have the option to restart the computer when you click the power button. Restarting the system while it is powered on is called a warm boot. ठीक है, कोल्ड बूट क्या था? एक बिल्कुल टर्न ऑफ स्टेट से सिस्टम को स्टार्ट करें तो वो कोल्ड बूट है, और एक ऑलरेडी टर्न ऑन सिस्टम से हम
रीस्टार्ट करेंगे एंड देन वो दोबारा से स्टार्ट होगा, उसको हम वार्म बूट कह रहे हैं. You might need to perform a warm boot if the operating system or other software application stops responding or if you are installed new programs. It takes less time to perform a warm boot than to power down completely and then restart all your hardware. ठीक है. तो कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, उसकी सेटिंग्स को कंपेटिबलाइज करने के लिए विद योर सिस्टम हम रिस्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ergonomics. It's important that you understand not only your computer's components and how they work together, but also how to set up these components safely. Ergonomics is the science that deals with the design and location of machines and uh, furniture so that the people using them are not subjected to an uncomfortable or unsafe experience. In terms of computing, ergonomics refers to how you set up your computer and other equipment to minimize your risk of injury and discomfort. अच्छा, ergonomics क्या है? एक साइंस बोलते हैं जिसमें हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर कोई सिस्टम डिवाइस बन रही है तो उसको यूज़र यूज़ कैसे करेगा. ठीक है. पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हमारे पास जो अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में जो कीबोर्ड है वो फ्रंट पे हो और जो स्क्रीन है वो बॉटम पे हो. चीज़ तो वैसे ही फंक्शन करेगी, बट ये एर्गोनॉमिकली काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि एक वर्टिकल सरफेस पे हम कीबोर्ड को कीज़ को प्रेस करें और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम लैपटॉप की स्क्रीन को विजुलाइज करें. इवन ये परफॉर्म करते हुए हमारे जो आर्म्स होंगे वो हिंड्रेंस लाएंगे हमें स्क्रीन देखने में. तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल दी है कि हम कभी भी एक चीज़ इस तरह की डिज़ाइन नहीं करेंगे कि एर्गोनॉमिकली वो एक डिस्कम्फर्ट या यूज़र के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके. Why is ergonomics important? Studies suggest that teenagers on average spend 7.5 hours a day using computing devices. When you factor in other computer uses such as playing video games, there is a great potential for injury. The repetitive nature of long term computing activities can place too much stress on joints and pull on the tendons and muscles, causing repetitive stress injuries such as the carpal tunnel syndrome and tendinitis. अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम इसकी एक इनिशियल स्टेज होती है कि हाथों का या पाँव का सुन्न हो जाना. ठीक है. और इसमें हमें एक्सटेंसिव पेन महसूस होता है हमारे हैंड्स एंड लेग्स के जॉइंट्स में. तो ये चीज़ के एग्जैक्टली उसको हम एक ऐसे कंफर्टेबल प्लेस में हम अपने सिस्टम को यूज़ करें ताकि लॉन्ग सिटिंग्स के लिए भी हमें सिस्टम को देख सके. These injuries can take months or years to develop to a point where they become painful, and by the time you notice the symptoms, the damage has already been done. If you take precautionary measures now, you may prevent years of unnecessary pain later. ठीक है. एक कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आपके मसल्स, आपके टेंडन्स, आपकी आईज, आपका बैक, जो बोन है, लेग्स, की तमाम चीज़ें कंफर्टेबल रहते हुए आप एक लॉन्ग सिटिंग कर सकते हैं. कंप्यूटर को लॉन्ग टर्म के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. हाउ कैन आई
avoid injuries when I am working at my computer. So we have 68 students up till now. It's important to arrange your monitor, chair, body, and keyboard in a way that will help you avoid injury, discomfort, and eye strain. The following additional guidelines can help you keep you comfortable and productive. इस पे मैंने याद है आपको एक बार क्लास में बताया था कि आई केयर या रीडिंग मोड या स्लीप मोड के नाम से डिफरेंट वर्जन आते हैं इन योर मोबाइल फ़ोन इन योर सिस्टम्स। तो उनको हमेशा टर्न ऑन रखें। तो वो ब्लू लाइट फिल्टर करके आपको स्क्रीन शो करवाता है। एंड ब्लू लाइट से की अदम मौजूदगी से क्या होता है कि आपकी आइज़ पे काफ़ी लेसर स्ट्रेन पड़ता है। Position your monitor correctly. Studies suggest that best to place your monitor at least 25 inches from your eyes. Recommend that you position your monitor either at eye level or at an angle of 15 to 20 degrees below your line of sight. परचेज एन एडजस्टेबल चेयर जिस पे हाइट को हम एडजस्ट कर सकें। अच्छा, ये जो हमारे पास एक इमेज आ रही है इसमें एक देखिए कि एडजस्टेबल चेयर है और बैक सपोर्ट भी है और आइस का जो गेज है वो बिल्कुल आई लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। और फुट रेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है पाँव की प्लेस करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो अपने दोनों हैंड्स को यूज़ करना चाहिए। और अगर आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड पे अगर जो है लैपटॉप का या कंप्यूटर का तो उस पे जो दो कीज़ हैं एफ एंड जे उनके ऊपर एक इंग्रेव्ड एक ना मार्क लगा होता है। तो दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द इंडेक्स फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स। ठीक है। तो इम्बोज सॉरी इंग्रेव नहीं इम्बोज्ड। तो हमेशा आप जब अपने हैंड्स को कीबोर्ड पर रखेंगे तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होगी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो थंब है दैट विल बी रेस्टिंग नियर द स्पेस बटन। फिर जो ए एस डी एफ है ये जो कीज़ हैं इनके ऊपर आपकी स्मॉल फिंगर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। और जो कीज़ हैं जे के एल एंड देन दी कॉमा इस पे आपकी इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर। अब इस पोजीशन में रहते हुए नाउ यू कैन एक्सेस मैक्सिमम
keys of your keyboard without actually moving your hand or roaming around on the keyboard. ठीक है, तो अपने दोनों हैंड्स को यूज़ करना है, दोनों हैंड्स के पांचों कीज फिंगर्स को यूज़ करना है। देन हम इफेक्टिवली एक लॉन्गर टाइम के लिए टाइपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। टेक ब्रेक्स एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है यहाँ पे। तो उस रूल का नाम नहीं लिखा हुआ, रूल ऑफ 20 होता है कि 20 मिनट्स काम करें एंड देन 20 सेकेंड्स के लिए अपनी आई गेज को रेस्ट दीजिए। तो अब इस पे अगर आप 40 मिनट्स काम करें तो 40 सेकेंड्स, 60 मिनट्स काम करें तो एटलीस्ट 1 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। आप अपने वर्किंग चेयर से उठें, अपनी आई गेज को फोकस करें एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से आप एक बिल्कुल करेक्ट वे में ब्रेक ले सकते हैं। इंश्योर द लाइटनिंग इज एडिकेट। ठीक है, आप जिस रूम में काम कर रहे हैं आपको कीबोर्ड की तमाम कीज सही से नज़र आ रही हो। फिर ये है कि अगर आपने लैपटॉप के साथ साथ राइटिंग भी कुछ परफॉर्म करनी है तो राइटिंग के लिए भी तमाम की लाइट्स मौजूद हों। इज़ एर्गोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट व्हेन यूजिंग द मोबाइल डिवाइस? डेफिनेटली, जो कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है उसको यूज़ करने के लिए एर्गोनॉमिक्स ज़रूरी है। तो स्क्रीन टाइम ऑलवेज मैटर, नॉट ओनली फॉर द किड्स बट ऑल्सो फॉर द एल्डर्स। तो इसलिए हम ने देखना है कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को हम एक प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें। What devices are available for people with disabilities? अच्छा, डेफिनेटली डिसेबिलिटी एक फिज़िकल फिनोमेनन है जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। कुछ बंदों की आईसाइट वीक होती है, कुछ बंदों के हैंड्स में कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ बच्चों का बंदों का सिटिंग में कुछ इशू होगा, कुछ बंदों का जो सेंस ऑफ हियरिंग है वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए देयर आर सम डिवाइसेस। अगर बिल्कुल ही एक ब्लाइंड पर्सन है तो उसके लिए वॉइस को रिकॉग्निशन बेस्ड कंप्यूटर आउटपुट एंड इनपुट होता है, एटसेट्रा। People with motor control issues have difficulty with pointing devices to aid such users. Special uh, tech balls are available that can easily manipulate with one finger and can be attached to almost any surface. ठीक है, मोटर यानी कि मूवमेंट, हाथ की मूवमेंट वगैरह के लिए अगर कोई इशू वगैरह है तो उसके लिए भी अल्टरनेट डिवाइसेस मौजूद होते हैं। So, preventing injuries when on the go, this is a pictorial representation of all the hazards related to the लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स और कैसे उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, देयर आर सम स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस। अगर तो बिल्कुल भी अगर एक हाथ से काम हो सकता है तो वन हैंड कीबोर्ड भी होता है। अदरवाइज
हु cannot type with their hands. तो बिल्कुल इस तरीके से मुंह से भी आप कीबोर्ड को टाइप करने के लिए देर आर सम डिवाइसेस. ठीक है. So that concludes our today's lecture.